Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to discuss with you the solution of question paper of statistical methods for economics for BA Economics Honors Semester 3, which was being held in December 2020 Open Book Examination OBE. तो 2020 में जो OBE एग्ज़ाम हुआ था स्टैट्स का इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 का, उसका मैं करने लगा आपके साथ आज सॉल्यूशन का डिस्कशन। और इस क्वेश्चन में इन दिस पेपर देयर वर 6 क्वेश्चंस and we will you were students were supposed to solve any 4 out of those 6, and I will solve all the 6 questions one by one video for one question. So in this class I will solve question number 1. इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अब वो काम की नहीं है, वो बदलती रहती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सीधे क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। A consignment of 7 refrigerator sets contains 5 sets with no scratch on them. A hotel makes a random purchase of 3 of the sets. If X is the number of refrigerator sets purchased with a scratch on it, find the probability distribution of X, find the cumulative distribution function of X, construct a graph of the CDF. Using CDF, find P X more than 0 less than equal to 2. Okay, let's solve all these parts one by one. So to begin with, I'm starting from question 1. Question 1, first part. Now what is X? X represents the refrigerator sets. With a scratch on it. So, out of 7 refrigerators, 5 have no scratch. That means there are only 2 refrigerator sets which have some scratch on them. And we the hotel have to purchase 3 sets. So maximum they can have 2 refrigerators with scratch. क्योंकि 7 में से 5 में कोई स्क्रैच है ही नहीं, सिर्फ 2 रेफ्रिजरेटर में स्क्रैच है। तो आपने जितने भी परचेज करे हैं उनमें से आपको सिर्फ 2 ही स्क्रैच वाले मिल सकते हैं। हो सकता है आपको एक भी स्क्रैच वाला रेफ्रिजरेटर ना मिले, हो सकता है एक मिले, हो सकता है 2 मिले, क्योंकि 2 से ज्यादा तो स्क्रैच है ही नहीं रेफ्रिजरेटर्स में। सो 0 स्क्रैच, 1 scratch, 2 scratch. Now what is the probability? Okay, I forgot to write. I'm finding the probability distribution. Probability distribution of X. So what is Px? Now, see, we have to find the probability that the hotel got the refrigerators which have no scratch. So they purchased 3 refrigerators. All 3 are from scratchless category. There are 5 refrigerators with no scratch. So 5C3 favorable chances divide by 7C3 total chances. 5C3 by 7C3. ठीक है, 5C3 इसलिए क्योंकि 5 रेफ्रिजरेटर्स में कोई स्क्रैच नहीं है, उनमें से हमने कोई 3 लेने हैं क्योंकि हमें स्क्रैच वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे 0 स्क्रैच मतलब नो स्क्रैच। और 7C3 हमारे टोटल चांसेस हैं। इनको रफ में फाइंड कर लेते हैं। 5C3 वैसे 10 होता है, आप जानते हैं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। 5C3 कैसे निकलेगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। सो इट इज 5 into 4 into 3 factorial divide by 3 factorial into 2 into 1. So 3 cancel, 2 5 2s are 10, and 7C3 it is 7 factorial divide by 3 factorial 4 factorial. So it is 7 into 6 into 5 into 4 factorial divide by 3 into 2 into 1 into 4 factorial. 4 4 cancel, 3 2s are 6 cancel, so it is 35. So the probability is 10 by 35. It is 10 by 35. 2 by 7 I can write. Okay. Now one scratch मतलब जो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपके पास टोटल 7 है, 7 में से 2 में स्क्रैच है, 5 नॉन स्क्रैच है। तो यू हैव गॉट 1 फ्रॉम दीज 2 कैटेगरीज, 2 रेफ्रिजरेटर्स, एंड यू हैव गॉट 2 फ्रॉम दीज 5 विद नो स्क्रैच। तो एक मिला आपको स्क्रैच वालों में से और 2 मिला नॉन स्क्रैच वालों में से। ठीक है, सो 2C1 5C2 एंड है तो मल्टीप्लाई 2C1 इंटू 5C2 डिवाइड बाय टोटल चांस वही है, 7 में से कोई 3 लेने हैं। 2C1 2 होता है, 5C2 10 होता है, 5C2 5C3 दोनों सेम होते हैं, ये भी 10 आएगा। 7C3 निकाल लिया हमने, 35 आ रहा है। सो दिस इज 4 by 7 एंड 2 स्क्रैचेस मतलब
आपने जो रेफ्रिजरेटर लिए उनमें से 2 आपको इस इन 2 में से मिले हैं और एक मिला आपको इन 5 में से, ठीक है। तो 2C2 into 5C1 divide by 7C3. 2C2 is 1, 5C1 is 5, divide by 35, so 1 by 7. टोटल चेक कर लीजिए, 2 4 6 plus 1 7 by 7, टोटल 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? फाइंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके, देखिए व्हेन x इज, अब मुझे fx निकालना है यहाँ पे. आई हैव टू फाइंड fx. सो देखिए fx में क्या करते हैं हम, क्यूमुलेटिवली ऐड करते जाते हैं. व्हेन x इज लेस देन 0, 0 से कम स्क्रैच तो हो ही नहीं सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 0 है. व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेक्स्ट नंबर, ये क्योंकि डिस्क्रीट है ना, तो 0 से 1 के बीच में कुछ नहीं होगा, तो हमारे पास 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. तो यहाँ पे जम्प्स आते हैं बेसिकली बीच में. तो 0 से ज्यादा मगर 1 से कम, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/7. 1 से ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ठीक है. ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2. अब क्योंकि हम क्यूमुलेट करते हैं तो ऐड करते जाते हैं. इसमें ऐड क्या करना है, देखिए 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, 1 पे प्रोबेबिलिटी आ रही है 4/7, और 1 से कम पे थी 2/7. तो 2/7 प्लस 4/7 क्या हो जाएगा, 6/7. एंड इफ x इज मोर देन 2, तो 6/7 प्लस 1/7 क्या हो जाएगा, 7/7, यानी कि 1. तो हम क्यूमुलेट करते जाते हैं, ऐड करते जाएंगे इसको. और इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने को बोल रहे हैं, तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं. लीजिए जी, सबसे आसान काम यही है, फाइंड आउट करना. हमारे पास वैल्यूज क्या है, 0 स्क्रैच, 1 स्क्रैच, 2 स्क्रैच, यही है ना. तो मैं एक्सेस पे ना, यहाँ पे देखिए ये है हमारा, थोड़ा पीछे से चलना पड़ेगा. 0 स्क्रैच, 1 स्क्रैच, 2 स्क्रैच, यही है. तो 0 से कम स्क्रैच का चांस तो कुछ भी नहीं है, तो 0 से कम स्क्रैच का चांस कुछ नहीं है, तो 0 पे लगाइए सर्कल और ये लाइन. आप क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे. यहाँ पे ये एम्प्टी सर्कल है, मतलब 0 पे, 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. फिर हमें चाहिए 2/7, 1 2 3 4 5 6 7, 1/7, 2/7, 3 4 5 6/7, 2 3 4 5 6/7, 7/7 यानी कि 1. यही जो वैल्यू मैंने वो लिख दी. अच्छा, 0 से इंक्लूडिंग 0, 0 इंक्लूसिव बट 1 एक्सक्लूसिव, ये मैं लेस देन लिखना भूल गया यहाँ पे. 0 इंक्लूसिव बट 1 एक्सक्लूसिव, इसमें प्रोबेबिलिटी 2/7. तो 0 पे लगेगा हॉलो सर्कल, 0 पे लगेगा फिल्ड सर्कल, 1 पे लगेगा हॉलो सर्कल, और उनको मिला देंगे. ठीक है जी, वी हैव जॉइंट देम. फिर 1 से 2 तक 6/7, तो 1 पे लगेगा फिल्ड सर्कल, 2 पे लगेगा हॉलो सर्कल, 6/7 पे हमने बना दी लाइन, और 2 पे आ रहा है, मोर देन 2 पे आ रहा है 1, तो 2 पे लगेगा फिल्ड सर्कल, और उसके आगे हम ये एरो शो कर देंगे. तो ये बन गया क्या, इसका CDF ग्राफ. दिस इज अ ग्राफ फॉर CDF. दिस इज x एंड दिस इज fx. कैपिटल F आप जानते हैं क्या होता है, CDF होता है. फिर वो बोल रहा है आपको फाइंड p मोर देन 0 लेस देन 2. ओके जी. प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 लेस देन इक्वल टू 2, इट इज f2. f2 क्या होगा, p x लेस देन इक्वल टू 2 माइनस f0. f0 क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 0. लेस देन इक्वल टू 0 में 0 भी शामिल है. तो f2 लेस देन इक्वल टू में कौन कौन है जी, लेस देन इक्वल टू में है 1. लेस देन इक्वल टू 0 में कौन है, देखिए अब यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो हमें दिखाया यहाँ पे कि 0 से लेकर 1 तक, मगर यहाँ पे और 0 से पीछे कितनी वैल्यूज हैं, 0 से पीछे वैल्यूज है हमारे पास कितनी, 0. प्रोबेबिलिटी 0 है उसके पीछे. तो यानी मैंने बताया था आपको 0 से 1 के पीछे कोई नंबर है नहीं बेसिकली, बस वो हमने लिखने के लिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जम्प्स है बीच में. तो अगर मुझे f0 फाइंड आउट करना है, f0 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 कितना है, वो है 2/7. ठीक है, तो 1 माइनस 2/7 विच इज 5/7. ओके, सिंपल सी बात है, राइट. ओके जी, फर्स्ट पार्ट डन. सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं सपोज लेट x डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इन अ डे दैट रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट स्पेंड्स ऑन अ स्मार्टफोन. Suppose the probability density function of x is this.
Random sample of 5 students is taken. Use method of moments to obtain estimator of theta. Then compute the estimate of this data. ठीक है. Method of moment से पहले हमको थीटा का वो निकालना है एस्टिमेट. ये क्वेश्चन हमने n नंबर ऑफ टाइम्स क्लास में करा हुआ है. n नंबर ऑफ टाइम्स थीटा के साथ, k के साथ, बस नाम बदलें, कई बार करा हुआ है. मेथड ऑफ मोमेंट्स में क्या करते हैं, हम सैंपल मीन लेते हैं, वो तो x बार ही होता है, पॉपुलेशन मीन निकालते हैं और उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. अब क्योंकि डेंसिटी फंक्शन है तो पॉपुलेशन मीन कैसे आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन से, और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में. तो पहले निकालना पड़ेगा, इसका बी पार्ट है ना, बी पार्ट सेकेंड पार्ट. पहले निकालना पड़ेगा ex क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू एफ एक्स डी एक्स. याद है मीन ऐसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू एफ एक्स. अब एफ एक्स क्या है सर, एफ एक्स है थीटा प्लस 1 एक्स पावर थीटा, थीटा प्लस 1 एक्स पावर थीटा डी थीटा. थीटा प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आएंगे इसको. इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स पावर थीटा प्लस 1, वो मैंने डी थीटा गलती से लिख दिया, यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स डी एक्स. सो थीटा प्लस 1 एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. सो एक्स पावर थीटा प्लस 1 प्लस 1 थीटा प्लस 2 डिवाइड बाय थीटा प्लस 2. लिमिट्स हैं 0 to 1. सो वी हैव थीटा प्लस 1 बाय थीटा प्लस 2 टाइम्स 1 पावर थीटा प्लस 2 माइनस 0 पावर थीटा प्लस 2. 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है, 0 का कुछ भी हो 0 ही रहता है. सो इट इज थीटा प्लस 1 बाय थीटा प्लस 2. नाउ व्हाट इज population mean? Population mean mu1 is ex, which is theta plus 1 by theta plus 2. What is sample mean? इसको बोलते हैं m1. m1 is x bar. So by method of moments क्या करते हैं, इक्वेट पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन. अगर एक ही पैरामीटर है तो, और अगर दो पैरामीटर है तो हम दो बार मीन निकालते हैं, म्यू1 म्यू2 निकालते हैं पॉपुलेशन का, और m1 m2 निकालते हैं सैंपल का. क्योंकि पैरामीटर एक ही है तो एक ही निकालना है हमको यहाँ पर. ओके, नाउ म्यू1 इज थीटा प्लस 1 बाय थीटा प्लस 2 एंड m1 इज x बार, क्रॉस मल्टीप्लाई. थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा x बार प्लस 2x बार. इधर ले आइए, थीटा माइनस थीटा एक्स बार इज इक्वल टू 2x बार माइनस 1, थीटा कॉमन, 1 माइनस x बार इज इक्वल टू 2x बार माइनस 1. सो व्हाट डज इट मीन, थीटा इज 2x बार माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x बार. सो देयरफॉर बाय मेथड ऑफ मोमेंट्स एस्टिमेटर फॉर थीटा इज, इसको बोलते हैं थीटा कैप इज 2x बार माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x बार. तो MOM से, मेथड ऑफ मोमेंट से ये आ गया थीटा का एस्टिमेटर. अब उसने आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और इस डेटा पे आपको वैल्यूज निकालनी, थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए मुझे करना ये है कि मेरे को बेसिकली x बार पहले चाहिए, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ. सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ करना अलाउड है. तो मुझे इनका पहले मीन निकालना है. सिंपल मीन कैसे निकलता है, इनको ऐड करके डिवाइड बाय n कर देंगे. 5 वैल्यूज हैं, 0.34 प्लस 0.40 प्लस 0.12 प्लस 0.55 प्लस 0.01. ठीक है जी, 1.42 आ गया. 1 2 3 4 5 वैल्यूज ऐड कर दी, डिवाइड बाय 5. सो एक्स बार आ रहा है 0.284. तो फॉर द गिवन सैंपल x bar is summation xi by n, और था 1.42 by 5 यानी 0.284. सो देयरफॉर थीटा कैप क्या होगा, 2x बार माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x बार, 2 इंटू 0.284 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0.284. थीटा कैप इज, ये जो आंसर आया है इसको मुझे करना है, सॉरी इसको करना है इंटू 2.284 इंटू 2.568 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0.284 which is 0.716. So theta cap is
568 minus 1 divide by 0.716. It is minus 0.6034. 603 मेरे ख्याल से क्वेश्चन है ना, पेपर में इसने बोला कि 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है। मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है। 2 डिजिट पे करना है राउंड ऑफ, ठीक है जी। तो 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करने पर ये वैल्यू आएगी आपकी 0.60 है ना, 3 तो 0.60 ही रह जाएगा, माइनस 0.60। ये आ गया आपका थीटा कैप। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ डन, इजी। बी पार्ट, अच्छा जी, ए पार्ट भी था क्या कोई? ए पार्ट तो लिखा नहीं था। बी पार्ट कहाँ से? अच्छा, सेकंड का ए पार्ट था वो। ओके ओके, सेकंड का ए पार्ट था, मेरे को ए पार्ट नहीं, बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट है। इफ यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स। देखो सर, इससे क्या मिला हमको, यू और वी इंडिपेंडेंट है, यानी उनका कोवेरियंस 0 होगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हैं, स्टैंडर्ड मतलब उनका मीन भी 0 होगा और उनका वेरिएंस 1 होगा। इस इंफॉर्मेशन से इतनी बात मालूम चल गई हमको। क्या मालूम चल गया कि इंडिपेंडेंट है मतलब u और v का जो कोरिलेशन है या कोवेरियंस है वो 0 है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हैं तो उसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है, ये मुझे मालूम हो गया। z दे रखा है 0.6 u प्लस 0.8 v, डिटरमाइन कोरिलेशन u z। ओके, तो देखिए सेकंड के बी पार्ट की बात कर रहे हैं। सिंस u and v are independent variables, therefore covariance u v is 0. Also, since u and v are standard normal variates, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हैं, तो e ऑफ u इज इक्वल टू e ऑफ v इज इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस ऑफ u इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ v इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अच्छा, अब हमको z गिवन है कुछ, z इज 0.6 u प्लस 0.8 v। सो पहले मुझे ई जेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यू और जेड का निकालना है कोरिलेशन। वो होगा ई 0.6 यू प्लस 0.8 वी, यानी ये आ जाएगा आपका 0.6 ई यू, 0.8 ई वी। ई यू 0 है, ई वी 0 है, 0.6 इंटू 0 प्लस 0.8 इंटू 0 यानी कि 0। ठीक है जी बात, ओके। और फिर मुझे निकालना है वेरिएंस ऑफ जेड। वेरिएंस ऑफ जेड होगा क्या, दिस इज वेरिएंस ऑफ 0.6 u प्लस 0.8 v। आपको फॉर्मूला याद होगा, वेरिएंस ऑफ ax प्लस by इज a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab कोवेरिएंस xy। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा क्या, 0.6 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ u प्लस 0.8 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ v प्लस 2 इंटू 0.6 0.8 कोवेरिएंस ऑफ uv। रीजन में, बिकॉज ये रीजन में ये फॉर्मूला है। ठीक है, आगे रीजन में आपको लिखना है बिकॉज ये फॉर्मूला। अब वैल्यूज इंसर्ट करने का समय आ गया जी। 0.6 स्क्वायर होता है 0.36, वेरिएंस ऑफ u है 1। 0.8 स्क्वायर होता है 0.64, वेरिएंस ऑफ v है 1। ये कुछ भी रहे, कोवेरिएंस uv 0 है तो 0 आ जाएगा। तो 0.36 प्लस 0.64 आ गया 1, तो वेरिएंस ऑफ z कितना आ गया 1। मीन z का आ गया 0, वेरिएंस आ गया 1, मतलब z भी क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब मुझको फाइंड करना है कोवेरिएंस uz। कोवेरिएंस uz वुड बी e u माइनस u बार z माइनस z बार, e u माइनस u बार z माइनस z बार। ठीक है, तो सर u बार 0 है, z बार 0 है, e u इंटू जेड, क्योंकि u बार 0 है z बार 0 है, तो e u z आ गया। u इंटू जेड क्या है, z इज 0.6 u प्लस 0.8 v। ओके जी, तो इट इज e 0.6 u स्क्वायर प्लस 0.48 uv। So this means it is 0.6
e u square plus 0.48 e uv. नाउ 0.6 e u स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ u. आप कहेंगे सर वेरिएंस ऑफ u में तो e u स्क्वायर माइनस e u होगा, e u जीरो है इसलिए उसका फर्क नहीं पड़ता. और e u v क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो e u v जीरो आएगा, प्लस जीरो बिकॉज u एंड v आर इंडिपेंडेंट. इसका प्रूफ मैं अभी चलिए कर देता हूँ. वी यू है हमारा 1 तो 0.6 इज द आंसर. देखिए मैंने बताया कि अगर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो उनका कोवेरियंस जीरो होता है. कोवेरियंस क्या होगा? ई यू वी माइनस ई यू इंटू ई वी. ये जीरो आना है. ई यू जीरो है, ई वी जीरो है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ई यू जीरो है, ई वी जीरो है, तो ई यू वी भी जीरो हो जाएगा. क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन जीरो है यहाँ पर और क्वेश्चन में हमारे पास ई यू जीरो है, ई वी जीरो, तो ई यू वी जीरो आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सो आंसर इज 0.6. मतलब कोवेरियंस कितना है यू और जेड का? 0.6 इज द कोवेरियंस. ओके, अंडरस्टैंड. इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन आसान है. थर्ड पार्ट है फर्स्ट का. कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्वे ऑफ 25 रैंडम टाइपिस्ट्स a confidence interval for the mean needed to complete typing a page was this. Knowing that the distribution the time needed to a page is normal and the sample standard deviation was equal to 1, determine the confidence level used for the calculations. तो क्या confidence level use किया वो हमको use पता लगाना है. क्वेश्चन ने बोल दिया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है तो हम z यूज कर सकते हैं, और क्योंकि n यहाँ पे 30 से छोटा तो t भी यूज कर सकते हैं. तो आपकी चॉइस है. मैं t इजीली यूज करके दिखा देता हूँ आपको. t से करना ज़्यादा आसान हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 5.588. लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है, थर्ड पार्ट है ये, LCL पॉइंट, सॉरी 5 पॉइंट है शायद, है ना, 5.588. 5.588 and upper confidence limit is 6 point something आ रहा था, 6.412. What is mean? Mean होता है upper confidence limit plus lower confidence limit divide by 2, यानी 6.412 plus 5.588 divide by 2. मेरे को तो 12 by 2 नजर आ रहा है यहाँ से, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ. देखने पर तो एग्जैक्ट लग रहा है 12 by 2. 6.412 प्लस 5.588, हाँ जी 6. Now what is upper confidence limit? Upper confidence limit is mean plus t alpha by 2 into standard error of mean. तो यानी 6.412 is equal to 6. t alpha by 2 हमको मालूम नहीं है. स्टैंडर्ड एरर होता है s by under root n. तो 6 वहां जाके माइनस करेंगे तो 0.412 इज इक्वल टू टी अल्फा बाय 2. सैंपल्स एंड डिवीजन क्वेश्चन दे दिया 1, n है 25 बाय रूट 25. रूट 25 आ जाएगा 5, यानी टी अल्फा बाय 2 इज 5 इंटू 0.412 इंटू 5.2.06. ठीक है जी. और यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? वो है आपका n-1 यानी कि 24. अब टी टेबल में जाकर ये चेक करना है कि 24 डिग्री फ्रीडम के लिए 2.06 कहां पे आता है. पेपर जो है ना, ये पेपर के एंड में टेबल्स दे रखी हैं. ये रहा टेबल. 24 की रो में चलते हैं. ये 24 की रो है. मुझे चाहिए क्या? आई नीड 2.06. 2.06 ये रहा. रफली मिल रहा है मेरे को, एग्जैक्ट तो नहीं, रफली मिल रहा है 2.06. ये किस में आ रहा है? 0.025 में. तो अल्फा बाय 2 0.025 यानी अल्फा इज 0.05. सो देयरफॉर confidence interval is at 5% level of significance. तो ये हो गई ये कथा समाप्त. क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर डाला कंप्लीट.
फर्स्ट क्वेश्चन में इतनी ही बात थी सिर्फ, जो मैंने आपके सामने कर दी डिस्कस, और तो कुछ पूछा नहीं इसने यहाँ पर, नहीं और कुछ नहीं पूछा। एज सिंपल एज दिस। देखिए पेपर अभी सॉल्व होने के बाद लगता है अरे ये तो बड़ा आसान पेपर था, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्लास में पढ़ाते हुए भी आसान लगता है। तो देखिए यही क्वेश्चन क्लास में पचासों बार डिस्कस करे हुए क्वेश्चन, ये वाले ये क्वेश्चंस कितनी बार ही क्लास में डिस्कस्ड हैं। ठीक है, पेन बंद हो गया, एक मिनट। ये क्वेश्चंस क्लास में पचासों बार डिस्कस्ड हैं ये वाले, तो जहां तक मुझको याद है ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार डिस्कस्ड है। ये इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, इससे बहुत बड़े, तो बहुत छोटा सा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा हमने क्लास के अंदर। तो जो बच्चे क्लास में ठीक से जिन्होंने प्रैक्टिस करी थी उनको तो पेपर आसान लगा होगा, और जिन्होंने प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी तो सर पेपर तो मुश्किल होता ही है फिर। ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन वन हमने कर दिया कंप्लीट। कोई क्वेरी अगर होगी तो डिस्कस कीजिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर है मेरा आपके पास, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।